Yes. Hello, students. Aryan Gupta and Kismat Yadav. Aswani Sharma. Are you hearing me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, beta. Yes. Unit 2. Honeycomb, right? A gift of chapel. Yes. See there. Listen some lines related these lessons. Generally, we have seen and also in our practical life, our grandmothers, our father, our parents, or any family members, sometimes they like to visit different places, different families. They may be our relative, they may be some unfamiliar, yeah, they may be other the as of here, yeah, historical places. A lot of area they like us to carry, so that we should reach there, see there, observe there, and listen or learn something new. Like this, also in this chapter, we will learn that there is a family, and also in that particular family there is a grandparents. as a ऐसे कर सकते हैं कि they are our grandmother, our grandfathers, and also we can easily see that also there are some different type. Some are younger, small, or also big, or children are. So like this also this family happen, and later find out that what they do, what their grandfather or mother try to carry that particular student or girl or boy to carry to particular या other place, and what they feel there. तो हम इस पे पॉइंट करेंगे, फोकस करेंगे. आइए देखते हैं कि what is we find in this chapter. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai. These lines tell us that there is a girl whose name is Mridu, and she was growing in Chennai current time region. Earlier the Chennai name was Madras. यानी वहीं पर वह पली बड़ी है, बड़ी हुई थी. This Toppy is the name of her grandmother, right? And Thada उनको दादाजी के लिए बोला गया है. चीनी में यानी ऐसे कह सकते हैं इन मद्रास लैंग्वेज, इन चीनी लोकल लैंग्वेज, our grandfather जिसको हम दादाजी बोलते हैं, they are also called the father. Her grandfather यानी जिसको हम दादाजी अपने हिंदी में बोलते हैं, उनको वहां पे क्या रहता है, दादा. One afternoon, Toppy takes her to her aunt Rukmani house to meet her cousins Lali, Rabi, and Meena. Here the writer tells us that once upon a time, in the afternoon, the Mridu grandmother said to her that today is her plan to carry her to. आगे इसमें दिया है रुक्मणी वड़ी इसमें दिया गया है, यानी कहने का मतलब उनके घर पे. She decided to carry her, वहां पे ले जाना चाहती है. What is the reason? It was the reason that she wanted to meet her, visit her. किनसे? Cousins also there are Lali, Rabi, and Meena. They are already 3 children. आप समझ रहे होंगे. Yes, Aryan Gupta and Harsh Pratap, Aswani Sharma. Are you understanding what I am teaching you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, बेटा. तो इस तरीके से उनकी दादी माँ जो है मृदु को
रुक्मिणी के घर ले जाती हैं उनके कजिन जिनका नाम लाली, रवि है और मीना, इनसे क्या करने के लिए, मिलवाने के लिए। ये हमने इसमें देखा। नेक्स्ट, a gift of chapel, as you know that this is the name of this chapter. Smiling Rukmini threw open the door, यानी इसमें बताया जाता है कि when the Mridu and her grandmother, टॉपिक जिनका नाम है, when they both reached there, that period the Rukmini open the door. जनरली ऐसा होता है, हमारे दरवाजे पर हमारे घर पे कोई आता है तो जनरली जब हम आहट पाते हैं, संकेत इंडिकेशन पाते हैं, sure we try to run very fastly and try to open the door. ऐसा उनके साथ भी होता है। Next, Rabi and Meena rushed out, और जस्ट उनके साथी जो वहाँ पे 3 बच्चे हैं, रवि, मीना और लाली, तो उनमें केवल जो है रवि एंड मीना, ये दोनों बच्चे आल्सो रश आउट। रश आउट मीन्स रन वेरी फास्ट, वे बहुत तेजी के साथ दौड़ करके जाते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, एंड जस्ट आफ्टर रीचिंग ऑन द डोर, रवि कैच द हैंड ऑफ द मृदु एंड आल्सो ट्राई टू क्या ड्रा टू इनसाइड। इनसाइड का मतलब मृदु को जो है रवि हैंड पकड़ता है और खुशी में जो है वह चाहता है कि जितना जल्दी हो अपने घर के अंदर ले ले, एंट्री करा दे। तो दिस वाज द रीजन टू पुल। पुल का मतलब खींचना। आगे देखिएगा, वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर। जब वहां पे रवि जो है मृदु के हाथ को खींचता अंदर लाने के लिए, तो दैट पीरियड मृदु सेज कहती है, व्हाट सेज, वेट प्लीज, वेट कीजिए, किसके लिए, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, जिससे कि जो मेरा स्लीपर है मैं इसको क्या कर दूं, निकाल दूं। टेक का मतलब निकाल देना या उतार देना, ऐसे कर सकते हैं। आगे प्रोटेस्टेड मृदु, प्रोटेस्टेड मीन्स विरोध कर दिए। विरोध करने का सेंस है, हम बोलते हैं ना प्लीज 1 मिनट रुकिए आप, हम तो चप्पल निकाल दें, तो उस सेंस को कहा गया यहाँ पे क्या चीज, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने रोका, उनको विरोध किया। नेक्स्ट, she set them out neatly near a pair of large black ones. Here this is the describe that मृदु है वो अपने स्लीपर को जो है उतार देती है, और उतारने के बाद उसकी जहां वो रखती है वहां पे एक पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, वहां पे और भी स्लीपर वगैरह रखे गए। तो इस तरीके का जगह है, वहां पे अपने स्लीपर को क्या करती है, रख देती है। तो दिस वाज हैपन देयर। जस्ट आफ्टर नेक्स्ट, दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट। हियर मृदु डिस्क्राइब दैट द सिचुएशन ऑफ दैट स्लीपर, इट मीन्स कलर बिकेम ग्रे। ग्रे कलर का मतलब जो हमारे देखा आपने सॉइल जो है, जो मिट्टी है हमारे कपड़ों पे या शू पे या स्लीपर पे लग जाता है, तो उसका कलर आप जानते हैं ग्रे कलर होता है। तो उसी को बताया गया, आल्सो लुक्स ग्रे कलर एंड एक्चुअली वास्तव में डस्ट का मतलब डस्टी। यानी हियर मृदु वांट टू डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ स्लीपर आल्सो whatever available there, especially she is describing about of her slipper that it was completely dusty and this was the reason that looks a gray color. तो ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट, आगे इसमें फिर देते हैं कि you could see the clear mark of every mark on the front part of each slipper. Here also she describe, who describe, Mridu, कि there are a lot of the sleepers and she describe that, जो मतलब होता है जो पैर का अंगूठा होता है वहां पे जाके, कहने का मतलब जैसे आप स्लीपर पहनते हैं वो है आपका मान लीजिए पैर, तो कई बार उस पे जब वो सूखता है, हीटिंग मिलती है, तो उस पे मार्क बन जाते हैं, चिन्ह बन जाते हैं। तो वही दिया गया कि मार्क ऑफ ईटी टू का जो है मार्क बना हुआ है ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ई स्लीपर, हर जो है स्लीपर के सामने। हेलो, हाँ बोलिए सर, प्लीज म्यूट एवरीवन, some words make
Yes, dear all students, you are special advice that please no talking and no extra sound. Reason other students are also connecting already, so they are also feeling disturbance, and I am also here. So please maintain. This is your moral duty. Next, the mark for the two big two were long and scurvy. Here, the Mridu is describing especially her personal slippers, and there are two toe marks already showing, and long and स्कारवे. स्कारवे मीन्स होता है थिन, पतला. जैसे आपका टो है, ये जो है आल्सो थिनर देन फिंगर. अंगुलियों की अपेक्षा ये क्या होता है? थिनर नहीं, बल्कि इसको हम बोलेंगे क्या चीज, फाइटर, मोटा हो सकता है. तो वो बताया गया है. और थिनर का यहाँ पे स्कारवे का सेंस है थिनर, तो उनका क्या है, मार्क्स पतला है. तो दिस इज द रीजन दैट हियर यूज द वर्ड स्कॉर्वे, या स्कॉर नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, Mridu did not have much time to wonder about whose slipper they were. Here, Mridu described her personal experience that she was unable to understand that whose slippers were already lying there. यानी कहने का मतलब ये है कि वो जब वहां पे पहुंची, अपने स्लीपर को निकाली और वहां रखने गई, तो देखती है कि पहले से ऑलरेडी वहां पर क्या स्लीपर्स पड़े हुए, पर शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी. तो ये आपको इसमें दिया गया है. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. एक और उसमें रीजन वो शो कर रही है. और दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि रवि जो है उसको बहुत, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, जबरदस्ती ले जाना. कहाँ? हर टू द बैकयार्ड, आंगन की ओर. तो हियर शी डिस्क्राइब that she was forced to go to the backyard region. रवि was trying या forcefully, यानी जबरदस्ती उसको खींचने की कोशिश कर रहा था. This was also reason that she was unable to understand that whose this all slipper belong, यानी किसके हैं वो नहीं जानता है. Next, अब आगे देखिएगा. Behind a thick beaten berry bush, he also described that when she reached into the backyard, she saw that there is a thick moटा and bitter berry, समझ रहे होंगे, बेर जिसको बोलते हैं जो मीठा नहीं है. Also bush वहां पर था. कहां पर? In the courtyard. There inside a torn football lined with sacking and filled with sand. She also described that when she reached there, she saw that there is a football and that football was torn. Torn का मतलब फटा हुआ था. जैसे पुराना हो जाता है तो जनरली आप कह सकते हैं या देखते हैं कि वो फट जाता है. तो वही दिया कि लाइन विद द सैकिंग एंड फील्ड विद द सैंड, और उसके पास में जो है, या उसमें भी कह सकते हैं, सैंड बोलते हैं रेत को, और वहां पर रेत भर दिया गया था. अब आगे इसमें देखेंगे, ले अ वेरी स्मॉल किटन, इसको दिखाया जा रहा है, कह सकते हैं दिस पार्ट यू कैन सी इन द बुक. वहां पे दिखाया जा रहा है कि आल्सो थिक ले अ वेरी स्मॉल किटन, और वहां पर जो है एक बहुत छोटा सा किटन बोलते हैं जो बिल्ली के बच्चे हैं. आल्सो शी डिस्क्राइबिंग दैट देयर वाज अ वेरी स्मॉल बेबी, इट मींस किटन ऑफ द कैट. She was also lying there. Lying there का मतलब पड़ी हुई थी, यानी वहां पर थी. जैसे आप इसमें देख सकते हैं, very easily like this there. Next, yes, Ashwini Sharma, Aryan Gupta. बेटा आप लोग समझ रहे हैं हमारी बात को? Yes, sir. Yes बेटा, good. Yes बेटा. आगे नेक्स्ट. सबका नाम लेना संभव नहीं है, तो बस पता चलनी चाहिए कि आर यू अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट, आगे इसमें दिया गया है, लेपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल. हियर इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द स्मॉल किटन, यानी उस बिल्ली के बच्चे के बारे में डिस्क्राइबिंग किया जा रहा है
लेपिंग का मतलब होता है जीभ से चाटना। जैसे हमारे डॉगी होते हैं, ये कैट होते हैं, और भी ऐसे एनिमल हो सकते हैं जो किसी चीज को, या जैसे मान लीजिए वैसे तो खाते हैं, मान लीजिए रोटी वगैरह टाइप का है जो, लेकिन जो लिक्विड चीज है जिसको खाना संभव नहीं, पीना ही है, तो उसको जीभ के माध्यम से क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैपिंग, चाटना हिंदी में बोल सकते हैं। तो इस तरीके से वो। अब मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाल्फ सेल। कोकोनट आप समझ रहे होंगे, जो हमारे गड़ी वगैरह टाइप का ऐसा होता है, या उसको भी कह सकते हैं। उसको जब हम तोड़ते हैं तो आपने देखा कई तरीके के तोड़ने के तरीके होते हैं। कई बार एक आइडिया से तोड़ा जाता है तो उसमें एक पात्र टाइप का बन जाता है, तो उसी में मिल्क रखा हुआ है, और उस मिल्क को दैट किटन वाज ट्राई टू लेपिंग, उसको ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है। अब आगे देखिएगा। We found him outside the gate this morning. He was meowing and meowing. Poor thing, said Meena. मीना जो है उस मृदु को बता रही है, यानी मीना इज आल्सो डिस्क्राइबिंग अबाउट ऑफ दैट स्मॉल किटन दैट इन द मॉर्निंग टाइम, यानी सुबह के समय, वी फाउंड दिस स्मॉल किटन एट द गेट, यानी उन्होंने बताया कि हमने जो स्मॉल, इस जो किट है या बच्ची है जो बिल्ली का, इसको हमने गेट पे पाया, मॉर्निंग का टाइम था, और यह जो है म्याऊ म्याऊ जो इनकी लैंग्वेज होती है, जो हम आप डेली सुनते हैं अपने घरों में बिल्लियों को, इस तरीके से वह जो है वो बोल रही थी, अपनी आवाज निकाल रही थी। अब पुअर थिंग आप जानते हैं, बेचारा, पुअर गरीब के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो है उसको मतलब भाई दयनीय हालात में, कहने का मतलब कोई एक छोटा सा बच्चा कहीं मिल गया जो उसके साथ कोई गार्जियन नहीं है, तो हम देखते हैं तो कई बार हमें दया जाती है उसके एक्टिविटी को देख करके या उसके रोने चिल्लाने को देख करके। लाइक दिस आल्सो हैपेंड देयर इन फ्रंट ऑफ मीना, रवि एंड लाली, उनके सामने भी ये घटना घटती है। बट दिस लाइन इज कंटिन्यू या स्पेशली डिस्क्राइबिंग बाय द मीना इन फ्रंट ऑफ मृदु, यानी मीना मृदु को बता रही है। नेक्स्ट, इट इज सेक्रेट। सेक्रेट का मतलब मिस्ट्री कह सकते हैं, रहस्य, गुप्त कह सकते हैं। अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पाडू मामा a house if she know we have a cat। इसमें बताया जाता है कि अम्मा कहा करती थी कि हमें जो है पाडू मामा के घर कई बार घंटों तक या कुछ समय तक रुकना पड़ सकता है, यदि जो है उनके पास, यानी इफ शी नो वी हैव ए कैट, यदि उनको ये जानकारी मिल जाए कि हमारे पास क्या है, कैट है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कैट है तो हमें हो सकता है कुछ समय तक वहां पे रुकना पड़ सकता है। अब आगे देखिएगा। पीपुल्स आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू द एनिमल्स। यहाँ पे हमारी आपकी जनरली एक बिहेवियर की बात है सोसाइटी में, हमारे आपके घरों में हमारे टीचर्स, हमारे एंसेस्टर, हमारे मदर फादर, हमारे ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, एवरीवेयर we very easily listen that we should be kind toward the animals, कि हमें जानवरों के प्रति दयालु होनी चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए। हम आप डेली सुनते हैं, चाहे टेलीविजन पे देखिए, बुक्स में देखिए, हर जगह आप पाएंगे। लेकिन कई बार लाइन आगे आपको आएगी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे गार्जियन बोलते हैं कि नहीं, जानवरों से प्रेम करते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनको भोजन देना है, उनको करना है। कई बार हमारे घर में अगर छोटा सा बच्चा, मान लीजिए यंग, अगर कहीं से किसी जो है डॉगी का बच्चा ला दिया, कैट का बच्चा ला दिया, तो कई बार हमारे गार्जियन जो है हमें क्या करते हैं, स्कूल डांटने लग जाते हैं, फटकारने लग जाते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है। तो वही इसमें लाइन आ रही, देखिए क्या दिया है कि पीपुल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू द एनिमल। ऐसा कहा जाता है, लोगों के द्वारा सजेशन दिया जाता है कि हमें जानवरों के प्रति क्या होनी चाहिए, काइंड। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब कभी हम ऐसा कर जाते हैं, यानी अगर हम बाय द वे घर लेकर के आते हैं,
दे स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, चीखना, चिल्लाना, मीन्स हमें डांटने लगते हैं कई बार कि नहीं आप कहाँ से सलाह दिए, ये गंदा कर देगा, वैसा तरह तरह की बातें अपने को सुनने मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन रियलिटी there are other point and in showing there are other point, other स्पेकुलेशन है, आइडियाज है, विचारधारा है, रियल में ऐसा नहीं है, पर वास्तव में सभी लोग ऐसे नहीं होते, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस पाया जाता है, कोई लोग लाइक भी करते हैं, कोई लोग डिसलाइक करते हैं। नेक्स्ट, oh don't bring that dirty creature here, said रवि। रवि ने कहा कि ओह का मतलब किसी चीज को हम लाइक न कर बोल देते हैं ओह, तो वही दिया गया इसमें हियर वर्ड्स। रवि कहता है कि बहुत से लोग कहा करते हैं जो लाइक नहीं करते, प्लीज व्हाट इज रीजन, आई हैव यू दैट दिस डर्टी क्रिएचर इन द हाउस, ही विल व्हाट इज डू डर्टी एवरीथिंग, चार्ज एवरीथिंग, यानी फाड़ देगा, नुकसान पहुंचाएगा। व्हाट इज द रीजन, no need of the any animals in the here, you should not bring this animal, this cat, आपको नहीं लाना चाहिए था। This type the word generally we listen, but not everybody, somebody are also lover of क्या चीज, animals। ऐसे हो। आसिफ अंसारी, आसिफ अंसारी, are you hearing me? Yes, sir. Yes. Next, do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? यहाँ पे बताया जाता है कि क्या आप जानते हैं कि इस जो है क्रिएचर के लिए मिल्क किचन से लाना कितना कठिन है। इट मीन्स इट इज वेरी हार्ड या इट इज नॉट वेरी इजी टू फाइंड द मिल्क फ्रॉम द किचन। कहने का सेंस है जैसे हमारे किचन में मिल्क रखा हुआ है, हम बिना परमिशन के मदर का या गार्जियंस का वहां से मिल्क निकाल करके हम जो है किसी रोगी के बच्चे को या किचन को हम जो लाए प्रोवाइड करा दें, तो देयर आर ए लॉट ऑफ क्या चीज चांसेस दैट दे विल स्कोल्ड मी, ज्यादा चांस है कि जब उनको जानकारी मिलेगी तो हमें पे डांट लगाएंगे। दिस टाइप द आइडिया इज मूविंग इन द माइंड ऑफ रवि, रवि के दिमाग में इस प्रकार की बात चल रही है। आगे ध्यान दीजिएगा, और उसमें नेक्स्ट दिया जाता है पार्टी सा मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। हियर यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है कि पाती जो है, जो उनकी पाती समझ रहे होंगे, दादी माँ का नाम है जो पाती के नाम से जानी जाती है, वह जो है मेरे ऊपर, ग्लास का मतलब होता है वही गिलास जिसमें होता है, और ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, देखा कि मेरे हाथ में जो ग्लास था जिसमें मिल्क था, उसको बहुत गौर सुने क्या किया, साफ देखा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हैंग्री, और जब मैंने देखा कि सी हैज बीन ऑलरेडी सीन मी, उन्होंने मुझे देख लिया है कि मैं मिल्क वहां पे ले जा रहा हूँ, तो जस्ट आई हैव रिप्लाई टू फाइंड द करेक्ट सॉल्यूशन टू ए बाइट हर स्कोल्डिंग, के डांट से बचने के लिए हमने तुरंत क्या आंसर दे दिया कि आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ। आई नीड मिल्क, मुझे इसकी मिल्क की आवश्यकता है। एंड दिस वाज द रीजन दैट आई एम कैरिंग द मिल्क इन द ग्लास, मैं ग्लास में मिल्क ले जा रहा हूँ। उस बात को छुपाता है। ऐसा हमें आपको भी करना पड़ सकता है यदि हम बिना परमिशन का गार्जियंस कैसा करते हैं। नेक्स्ट, अब आगे इसमें नेक्स्ट लाइन आ रही है आपकी कि आई वांट टू ड्रिंक इट, आई वांट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ, बट द वे शी लुक्ड एट मी, मैंने उनसे कहा कि आई एम हंग्री एंड आई वांट टू ड्रिंक इट इन स्पाइट ऑफ, ये बात कहने के बावजूद, शी वाज केयरिंग, शी वाज सीइंग वेरी केयरफुली दैट आई एम ड्रिंकिंग दैट मिल्क और नॉट, कि मैं उस दूध को पी रहा हूँ स्वयं या नहीं पी रहा हूँ। शी वाज केयरिंग, देख रही थी, ऑब्जर्विंग, निरीक्षण कर रही। नेक्स्ट, I had to drink most of it to throw her off the scent। यहाँ पे जो है ये बताया जाता है कि मैंने जो है अधिकांश उस ड्रिंक को उस गिलास में जो ले जा रहा था,
क्या कर लिया, पी लिया, पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, जिससे कि उसमें से जो खुशबू है, सेंट का मतलब क्या, खुशबू, क्या हो जाए, कम हो जाए, तो मैं उसको कुछ पी लिया। नेक्स्ट, देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, टम्बलर बोलते हैं गिलास को, गिलास का दिस इज द सेकंड वर्ड, यानी हियर he described that after drinking my milk the party wanted that I miss यानी रवि को, रवि should also return back that glass, it means that slumber यानी टम्बलर, उसको टम्बलर को वापस कर दे, ऐसा उनका प्लान था। पार्टी I will wash it myself, जब इतनी सारे क्वेश्चनिंग हो रही थी, there is a lot of question raising from the side of party, also the Ravi replied that grandmother, don't mind, I will first allow drink is the milk, and just after I will wash myself it, and just after I will keep in the kitchen it, मैं वापिस दूध आकर के रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। This was explaining by the Ravi. Why should I put you to the trouble? यानी यहाँ पे ये भी रवि आंसर दे रहा है कि दिस इज माई प्लान, दैट व्हाई आई डिस्टर्ब यू, मैं आपको क्यों परेशान करूं, क्यों मैं आपको वर्क दे दूं कि नहीं आप उसको ले जाके रखेंगी, वाश करेंगी, नो, आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं खुद ही ऐसा कर दूंगा। इस प्रकार का आंसर रवि इज क्या चीज, गिविंग टू हर। आई टोल्ड हर, मैंने ऐसा उससे कहा, कौन किससे कहा, रवि सेइंग टू द हर नहीं बल्कि हिज ग्रैंड मदर। I had to run and power the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Suspicious का मतलब होता है शंका, संदेह, डाउट। यहाँ पर जो है रवि ये बता रहा है कि finding the chance very fastly, very hurriedly mode, I reached that place where the kitten was lying and just very fast poured the milk from the glass into the kettle, coconut shelf. जो कोकोनट का पात्र था हमने तुरंत जो है उसमें डाल दिया, और डालने के बाद, गिरने के बाद, just after I return back and fight was that tumbler, समझ रहे होंगे आप गिलास, and very fast I also keep it the particular place, यानी जहाँ पे रखना था, किचन कर सकते, किचन का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर वहीं पे मान के चलिए वहां पे उसने रख देता है कि वास्तव में जो है दिया ना गार्ड रियली सस्पिशियस, कि अगर सी दिया गया, सी गार्ड रियली सस्पिशियस, सी दिया गया किसके लिए, पार्टी के लिए। तो here describing that this all work I have done very short time and very fairly, so that she never might fall into the doubt या suspicious, यानी शंका में, संदेह में न पड़ जाए कि नहीं हमने वहां पे इसको मिल को उसको प्रोवाइड कर दिया, किसको, किरण को, उनको ये विश्वास है कि नहीं हमने पी लिया। तो इस वजह से सारा वर्क he has done very fast. Next, now we have to think of some other way to feed Mahendran. ये जो महेंद्रन आप वर्ड देख रहे हैं, this is the name of the particular small kitten, ये उनके द्वारा रख दिया गया है नाम। और ये फिर ये कहता है रवि कि here we should be make a very क्या good plan to feed या provide the food या milk whatever that particular small kitten क्या चीज तो खा सकती थी, उसके दूसरा प्लान बनाना होगा। रीजन क्या है, it was not possible to provide the milk like this stealing sense, यानी चोरी करते हुए या बिना परमिशन का मिल्क प्रोवाइड कराना रेडी संभव नहीं है। तो दिस वाज द रीजन दैट ही इज सर्चिंग द अदर प्लान, दूसरा प्लान जो है अपने माइंड में क्या कर रहा है, वो सर्च कर रहा है, बना रहा है। नेक्स्ट, Mahendran, this little kitty
नेम इज महेंद्रन। यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि छोटी सी जो कुत्ती है उसका नाम जो है महेंद्रन रखा गया था। मृदु वाज इम्प्रेस्ड। जब ये सारी बात जो है मृदु सुनती है तो शी वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड या शी वाज वेरी वेरी हैप्पी। It was a real lamb, not just a kitty cat name। ये बताया गया है कि वास्तव में जो है यह उसका रियल नाम था, बल्कि कुछ समय के लिए कुटी के लिए। Actually, his full name is Mahendra Verma Pallav Pune। Here is describing that complete name was that particular kitty was महेंद्र वर्मा पल्लव पुणे। और उसमें आगे दिया कि MP पुणे is for short if you like। Here is also described that if you don't like to call with the complete name, you can also call that particular kitty in short name MP पुणे। सर स्कूल कब खुलेगा? Next, he is a fine breed of cat। आपके पास पेंसिल वगैरह होना चाहिए, कहीं पे आपको हार्ड वर्ड आता है यू कैन मेंशन। जैसे आपने दिया है ना, ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ब्रीड बोलते हैं नस्ल को, आप स्पेसिस बोल सकते हैं। आपने सुना कि इस नस्ल का जानवर है तो वही आपका मीनिंग है ब्रीड। ही इज अ फाइन ब्रीड कैट, इट मींस दैट पार्टनर किटी बिलोंग टू अ वेरी गुड क्या चीज ब्रीड। जस्ट लुक एट हिज फर। फर कह सकते हैं, आपने देखा होगा जैसे आपका वो कॉक होता है, मुर्गा जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जो है जो रेड कलर का होता है उसको फर बोलते हैं। लाइक दिस आल्सो देयर इज समथिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ द पार्टिकुलर किटी लाइक लायन मैन। जैसे लायन जो शेर होते हैं उनके जो है आल्सो हेड आप पाएंगे कि उनका जैसे जो गर्दन के ऊपर का भाग होता है बहुत बड़े बड़े हेयर आप देख सकते हैं या देखे होंगे टेलीविजन वगैरह या जू में। तो हियर आल्सो डिस्क्राइबिंग दैट दिस ब्रीड यस नस्ल आल्सो बिलोंग टू दैट पार्टिकुलर लाइन। ऐसा हो सकता है कि उससे मैच करती हो, जुड़ती हो या मिलता जुलता हो, लाइक दिस। एंड यू नो what the emblem of the ancient Pallav king was, don't you? Here is the Ravi describing and also raising some question in front of Mridu। अब मृदु के सामने रवि कुछ क्वेश्चन रेज कर रहा है। वो ये कर रहा है कि एंड यू नो, और आप जानती हैं, व्हाट द एम्ब्लम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग। एम्ब्लम दिया गया है चिन्ह का। चिन्ह का मतलब मार्क, पहचान, रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं। एंशिएंट पल्लव किंग, जो प्राचीन पल्लव किंग्स थे, राजा थे, वाज, डोंट यू, क्या आप जानती हो? He looked expectantly at the मृदु, और यह कहते हुए जो है वह इस तरीके से मृदु को देख रहा था जैसे किसी प्रकार का वो मृदु पे आशा रखता हो। आशा का मतलब जैसे आई एम टॉकिंग टू यू इन फ्रंट ऑफ या फेस टू फेस, तो समटाइम्स we both became so serious taking their particular matter। उसी तरीके से रवि भी सीरियस हो जाता है कि श्योर ऐसा लगता है कि आप क्या कर चुके होंगे, निश्चित रूप से आप जानते होंगे। क्या जानते होंगे? रिलेटेड दिस द ब्रीड ऑफ दिस स्मॉल किटी। नेक्स्ट, मृदु गीगल। जब यह बात जो है रवि कहता है तो मृदु गीगल का मतलब होता है I am joking, well just wait, I will show you sometimes। I am joking, अरे सोचो, मैं I am joking का मतलब आपसे मजाक कर रहा था। अच्छा, जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करें आप। आई विल शो यू समटाइम्स, आपको कभी कभी या जैसी जरूरत होगी या आने वाले समय इन द फ्यूचर टाइम, आई विल शो समथिंग रियलिटी। व्हाट इज द रियलिटी? रिलेटेड दिस ऑल फैक्ट, यानी जो जो हम आपसे पूछ रहे हैं इसका तथ्य जो है या जो रियलिटी हो हम आपको दिखाएंगे।
It is clear you don't know a thing about history. Don't make a noise. Hello. Beta, yes, some students are also asking that there are other students, they are making noise. So please just stop, region. Also, I am feeling disturbance and others. So help them, everybody. I am repeating this word second time. It is clear you don't know a thing about history. It means ऐसा लगता है क्लियर है क्योंकि आप जब आंसर नहीं दे पा रही हैं तो it means you have no knowledge, more knowledge about of the history. आपको हिस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ऐसा लगता है, नहीं जानते. Have not been to महाबलीपुरम, have you? क्या आपने महाबलीपुरम के बारे में नहीं जानकारी, नहीं देखा आपने, नहीं जाना? He said mysteriously. Mysteriously का मतलब होता है रहस्य के साथ. उसका जो raising का, asking का जो manners है, जो तरीका है, he also raised as he is also failed to the anybody in the suspicion. शंका में डाल देगा. इस तरीके से रहस्य के साथ रेज करता है. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thada, etc. Fact is, Mahendran, here is distant from that very same ancient cat. Here the Rabbi is describing that once upon a time, यानी कभी पहले, our class went there in that particular place, Mahabalipuram, and also I and my class, everybody saw different type the statue. स्टेचू समझते होंगे मूर्तियां जिसको बोलते हैं, आइडल्स कह सकते हैं. और वहां पे बताने की कोशिश किया कि का मतलब वहां पे दादाजी का क्या था, मूर्तियां लगी हुई थी या और भी इस प्रकार की चीजें थी जिसको जाना जा सकता था. इट वाज फैक्ट. फैक्ट का मतलब तथ्य है, यह प्रमाण है, प्रूफ कर सकते हैं. नेक्स्ट, Mahendran, here is distant from that every same ancient cat. Here also Ravi described that this kitten also belong that period, that time. Ancient का मतलब होता है प्राचीन, old कह सकते हैं. प्राचीन समय में जो कैट हुआ करती थी, also this breed, this means यह नस्ल, this small kid also belong that ancient cat. जो कैट थी उसे बिलोंग करती, उन्हीं का यह जो क्या है, ब्रीड है, नस्ल है. नेक्स्ट, और क्लोज रिलेटिव, उसका रिलेटिव है, उसका नजदीकी है. साइंटिफिकली स्पीकिंग, या एक साइंस के तौर पे, साइंस के प्रूफ के तौर पे स्पीकिंग ये बोला जा सकता है. ऑफ नन अदर देन द लायन, और हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द गारंटी दैट दिस श्योर बिलोंग टू द लायन ब्रीड. यह जो है लायन के प्रजाति से बिलोंग करती है, दूसरा कोई और नहीं हो सकता. द पल्लव लायन, एम्ब्लम ऑफ द पल्लव डिनेस्टी, यानी निश्चित रूप से जो है प्राचीन समय में जो पल्लव थे, जो राजा थे, उसे बिलोंग करती, उस समय का था. रवि वेंट ऑन, और ये सारी बात जो है रवि क्या करता रहा, वेंट ऑन मतलब जारी रहा. इट मींस ही वाज कंटिन्यूअसली स्पीकिंग और टेलिंग इन फ्रंट ऑफ द विदु रिलेटेड द क्या चीज, रियलिटी ऑफ दैट कैट, दैट किटन. Walking around the bitter-berry bush, waving a twig up and down. Here is this line describing कि जब ये बात चल रही थी, this period या that period, the Rabi